All right. I'm really sorry that I missed this actually. So our conversion location is our website, right? And the performance goal. What is the performance goal? What do you want? Do you want maximize number of conversions? Do you want to maximize return on ad spend? Do you want maximize number of link clicks? I don't understand why people go with the link clicks because it is not promising you sales. Maximize number of impressions. Always go with maximize number of conversions if you are here to sell a product. All right. So I've done that and I have clicked maximize number of conversions. The conversion event, that is also important. I don't know why anybody would want their conversion event to be add to cart because add to cart doesn't promise sales. Many people add to cart products, but they don't initiate checkout. Even if they're initiating checkout, they don't in the end click the purchase item. So it's always purchase, right? That's very simple. As far as the budget strategy is concerned, as I told you, there are two types of budget strategies. Um, I don't know why it's changing it. So there are two types of budgets, as I mentioned. One is the campaign one is the ad set one. I always use the ad set one because within a campaign of mine, I keep on adding more and more ad sets as the time goes, as new products are being filled. That is sort of the way I just deal with it. And so, yeah, I would also suggest you to go with ad set because once a campaign uh, budget has been specified, and if you're keeping on adding ad sets, then it's not helping anybody because the budget is being divided further and further. So always go with the ad set budget. It's easier to play with that as compared to the campaign budget. The start date time, obviously it's 4:42. I created this campaign at 4:38, so it's specifying that time. Nothing's very fancy. All right. You can also set an end date to specify that I will be running this campaign for 4 days, but I don't do that. My campaigns are everlasting. Once it stops performing, I just close the ad set from here or just close the campaign from here. I'm currently in the ad set part, so I can only control that. So now comes the main part, locations. Now, look, depends upon your product. To be very honest, you need to find a niche. You need to be prepared to find a niche. You can't say I am targeting a whole of Pakistan. My current ads regarding 17 Pro Max covers target the whole of Pakistan. Why? Because I know that 17 Pro Max has just been launched a month ago, and I cannot be so specified that I can only be targeting Lahore, Islamabad, or Karachi. So I have selected the whole of Pakistan. After 3 to 4 months, when there are enough users of a 17 Pro Max, which I know there will be at one point of time. So then what I will do is basically that I will be more specific because I know that most of my orders or 50 to 60% of my orders or 70 to 80% of my orders come from the top 50 cities. So there's an option here which you can only include cities, and within that cities I can also do uh, this part. So automatically it selects 50 cities, Pakistan's top 50 cities. How many cities are there? So here's the list. From 100 to 250,000 population, these are the cities. From 250 to 500, you know the rest. The top million being Faisalabad, Hyderabad, Karachi, Lahore, Multan, Rawalpindi. Yeah, you know the drill. So if I do know that I don't get a lot of conversions from these sort of cities, speaking from my perspective, I do get orders from these areas as well. So I am going to be selecting them as well. What you can do is it's a very smart strategy to create 3 to 4 ad sets, and within those ad sets you have at least 2 or 3 ads or ad creatives, to be precise. And how do you play with those ad creatives? You play with them uh, जैसे कि एक में मैं क्या करूँगा, एक में मैं ये सारी सिटीज़ को ले लूँगा, ठीक है? दूसरे एड सेट में मैं क्या करूँगा, दूसरे एड सेट में मैं सिर्फ सिटीज़ नहीं लूँगा। मैंने शुरू में जो इनिशियली था ना, इंक्लूड ऑल एरियाज, मैं पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ। तो एक एड सेट क्या हो गई जिसमें सिर्फ सिटीज़ हो गई, 50 सिटीज़, एक एड सेट हो गया जिसमें पूरा पाकिस्तान हो गया, ठीक है? और एक एड सेट हो गया अल्लाह-भला करे आपका जिसमें आपने बोला कि यार सिटीज़ तो करनी ही करनी है, लेकिन सिटीज़ के अंदर भी
आई एम गोइंग टू बी टारगेटिंग द बिगेस्ट ऑफ द बिग, राइट? तो मैं लिमिट रख रहा हूँ कि 7.5 लाख से लेकर 3 मिलियन की पॉपुलेशन जिन सिटीज में, उन्हीं की बात करना। मुझे झेलम, मुजफ्फरगढ़ वगैरह में नहीं करना। तो अब 21 सिटीज रह गए मेरे पास। मैं ये 21 सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ खाली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, तो 3 एडसेट्स मैंने आपको बना के दे दी जिसमें ये वाला हिसाब है। सही है। एक और एडसेट बन सकते हैं जिसमें आप बोले कि नहीं भाई, इसको भी कैंसिल करो, मुझे इतने सारे भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। सबसे ज़्यादा मुझे प्यार लाहौर से है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से आते हैं। लाहौर इज़ द किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितना बड़ा कराची हो, कराची से ऑर्डर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ when it comes to monetary wise, when it comes to financially, जो लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब में है, वो कराची में नहीं है। लाहौर वाले शायद एक बार सोचते हो परचेज करने से पहले, कराची वाले 10 बार सोचते हैं। सो इट्स वेरी much profitable and more easier for me to sell to Lahoris and Islamabadis as compared to Karachiites. That doesn't mean that I ignore this 2.25 million आबादी। मैं इसको इग्नोर नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा इधर आता है और मुझे मेरी ज़्यादा कन्वर्जन इधर होती है। तो ये फ़र्क है। तो ये भी हो सकता है कि आप बोले कि भाई मैं तो इन 3 शहरों को ही कर रहा हूँ, ठीक है, कोयटा भी डाल दो, ये कोयटा ही बड़ा शहर है, जबकि कोयटा से मेरे लिए रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। मेरी मेन टारगेट पंजाब ही है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं और आप बोलें कि यार के लिए पेशावर ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें एक और सीन ये होता है कि व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली, आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ये ऐसे, ये मैंने इसको नीचे कर दिया। अच्छा, ये हो गया। इसका अब देखिए, पेशावर का ना एक स्पेसिफिक रेडियस इसने डेस्टिनेट किया हुआ है। आप इसके रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? एक मिनट मैं आपको ज़रा समझा दूँ, क्योंकि इसके रेडियस को भी आप चेंज कर सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे कर सकते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो रेडियस का फैक्टर, एक मिनट, रेडियस का फैक्टर भी होता है वैसे। हाँ, ये रहा। तो आप इसके रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। आप बोले नहीं यार, 15 मिनट की रेडियस नहीं। अब जिसमें देखें, अब इसमें बताओ क्या हुआ, मैंने चूज क्या किया था, इस्लामाबाद किया था, लेकिन मैंने इसका रेडियस इतना बढ़ा दिया कि मेरे पास रावलपिंडी भी कवर होगी, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद है ट्वेंटी सिटीज़, और सिर्फ रावलपिंडी भी नहीं, उसके अतराफ में बहुत सारे चक्स होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, जो उस टेरिटरी का पार्ट होते हैं, तो मैंने उनको भी टारगेट कर दिया। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसको वैसे नॉर्मली जो एक डिफ़ॉल्ट होता है 25 का, उस पर रहने दीजिए तो बेहतर है। इफ़ यू वांट टू प्ले प्ले, डिपेंड्स अपॉन यू। शुरू में आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे अपने एड सेट्स के साथ कि यार अच्छा नहीं यार, इस्लामाबाद ज़्यादा आ रहा है, अगली बार इस्लामाबाद में करूँगा। मैं बहुत बार तो ये करता था कि इन सबको हटाओ, इन सबको हटाइए, मुझे तो सिर्फ पंजाब करना है, तो मैं पूरे पंजाब कर देता हूँ, पंजाब कर देता, कराची कर देता। तो ये भी तरीका होता है करने का। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप 3 से 4 एडसेट्स बनाइए। अब सिर्फ 3 से 4 एडसेट्स में सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हैं आप कि आप सिर्फ लोकेशन पे ही छेड़छाड़ी कर रहे हैं। अभी तो बहुत चीज़ आना बाकी है। ठीक है, शो मोर कंट्रोल्स कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अल्लाह भला करे आपका। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंसेस इफ यू वांट टू डू इट, इतनी ज़रूरत है नहीं। सजेस्ट एन ऑडियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए कि मैं फ़ोन कवर्स बेचता हूँ, ठीक है, और मेरे फ़ोन कवर्स की नॉर्मल प्राइस रेंज होती है तकरीबन 3,000 से शुरू होती है, 3000 टू 5000 6000। इसका मतलब कि मैं बेच तो प्रीमियम रहा हूँ। ठीक है, अब वो वीवो या ब्लैकबेरी या गूगल पिक्सल वाले कवर्स में नहीं बेचता, मैं बेचता हूँ आईफोन के ब्रांडेड, सैमसंग के टॉप मॉडल्स के ब्रांडेड। आईफोन में जैसे अभी मेरी तकरीबन कोई 6 से 7 एडसेट्स 17 Pro Max को टारगेट कर रही। क्यों? बिकॉज इट्स द लेटेस्ट फ़ोन, सबसे नया फ़ोन होता है। इसका पहली बात तो ये कि द वन हु इज़ परचेजिंग 17 Pro Max, अ फ़ोन दैट इज़ वर्थ अराउंड 4 to 5 lakhs कैन ऑल्सो परचेज अ 5000 6000 ब्रांडेड कवर, राइट? सेकंड बात ये है कि जो सबसे नया फ़ोन लेता है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी वो होता है कि वो मेरी चीज़ ले। अब जिसके पास 13 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स है, उसके बाद 2-3 साल हो गए उस फ़ोन रखे हुए, उसके अंदर शायद इतनी एक्साइटमेंट नहीं है अपना फ़ोन कवर चेंज करने की और 4000 या 5000 कवर लेने की। वो बोलेगा यार अभी कल शायद बेच दूँगा, अभी क्या इतने पैसे लगाऊँ। जो 17 प्रो मैक्स ले रहा है,
पहली बात तो कि उसका कलर ही इतना यूनिक है कि उसको फिर कवर भी उस तरीके का यूनिक चाहिए। फिर ऑब्वियसली बात है, एक ब्रांड कॉन्शियस बात भी आती है, बिकॉज वी हैव ब्रांड्स लाइक सेंटा बारबरा, पोलो, जूम, एक्स लेवल, पिटाका। पिटाका के कवर्स तो 50-20,000 रुपीज़ के होते हैं। तो ब्रांड कॉन्शियस तो हर कोई यहाँ है, बिकॉज अगर उस परचेजिंग 17 प्रो मैक्स एंड ऑल्सो परचेज दैट। सेकंड बात ये कि उसने नया नया फ़ोन लिए तो उसको प्रोटेक्शन भी करनी है। उसके दिमाग में है कि यार मेरा फ़ोन गिर ना जाए, 5 लाख की चीज़ है, अब मैं 5-6 हज़ार तो लगाऊँ ना अच्छी चीज़ पे कि वो कम से कम उसको प्रोटेक्ट करे। 100-200 का लगाऊंगा तो फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वनरेबल वो है। अभी एक महीना हुआ है एंड मोस्ट ऑफ आवर सेल्स आर बीइंग डन ऑन 17 प्रो मैक्स एंड 17 प्रो। तो ये हमारा सीज़न अभी शुरू हुआ है जो। तो अब बात करते हैं एज की। इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं फ़ोन कवर बेचता हूँ, मेरी एज की रेंज जो है ना वो थोड़ी बड़ी है। मैं अट्रैक्ट करता हूँ तकरीबन 18 से लेकर 45 तक को मैं अट्रैक्ट करता हूँ यूजुअली। अब मैं क्या करूँगा, इस एड सेट को चलने दूंगा 18 से 45 वाली। फिर मैं एड रिपोर्टिंग पे जाऊँगा 3-4 दिन बाद और उसमें देखूंगा कि अच्छा 18 से 24 वाले एज गैप ने इतने नहीं लिए, लेकिन 35 से 45 वालों ने बहुत लिए। तो उन पे ज़्यादा टारगेट करूंगा। फिर वो मैं नई ऐड बनाऊंगा और उस पे करूंगा। पुरानी ऐड को नहीं छेड़ना। पुरानी ऐड पे जाके फिर मैं एज की छेड़छाड़ी नहीं करूंगा। नो, आप नई ऐड बनाओ, पूरा डुप्लीकेट कर दो, सिर्फ एज का फिर नया उसका चेंज कर दो, ठीक है। जेंडर में 17 प्रो मैक्स लेडीज़ भी लेती हैं, मेल भी लेते हैं, और हमारे कवर्स मोस्टली जेंडर न्यूट्रल होते हैं। तो आई एम गोइंग टू बी टारगेटिंग ऑल ऑफ देम, डिटेल टारगेटिंग। इसमें आती है बात, इसमें देखिए अब हर कोई कवर तो नहीं बेच रहा ना मेरी तरह। आप जूते बेच रहे होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा शूज़ रेलेवेंस। अच्छा, इसमें 3 ब्रेकडाउन्स होते हैं। अच्छा, या तो आप सर्च करें या तो आप ब्राउज करें। डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, कि भाई तुम्हें कॉलेज ग्रेजुएशन वाले को टारगेट करना है, तुम्हें हाई स्कूल वाले को टारगेट करना है, तुम्हें इन कॉलेज वाले को टारगेट करना है। ये मेरे लिए तो काम की चीज़ नहीं है, लेकिन शायद कोई जो अपना कॉलेज का कोर्स बेच रहा है या कोई ऑनलाइन क्लासेस बेच रहा है, उसको टारगेट, उसको मार्केट करना चाह रहा है ऑनलाइन, तो शायद वो ये सब करे। फिर आती है फील्ड्स ऑफ स्टडी। फील्ड्स ऑफ स्टडी मतलब यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो ये पूरी दुनिया है, यू कैन टारगेट एनी वन ऑफ देम। मतलब अगर आपका, लेट्स अज्यूम दैट आई एम सेलिंग शूज़, ठीक है, तो मैं शूज़ पे जाऊँगा। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है शूज़ में, जो ऐसे पेजेस पे जाते हैं, तो मेटा उसकी लर्निंग करता है और फिर आपके ऐड उन्हीं को दिखाएगा, ठीक है। तो ये शूज़ हो गया। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत वेग है, शूज़ कौन से भाई। तो अब आ जाते हैं शूज़ में। डीसी शूज़, आई डोंट इवन नो व्हाट द फक इज डीसी शूज़, बट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ बात आ जाए तो मजा आए। ऑल दो शूज़, आई डोंट नो व्हाट। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, आप बेच रहे हैं ट्रैवलिंग शूज़ जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप फुटबॉल शूज़ नहीं बेच रहे, आप ट्रैवलिंग शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे कि यार आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, आपका डेली वॉक इतना होता है, यू नीड टू गेट दिस। दिस सूट्स यू ऑन जीन्स एंड चिनोज वट एवर। आपको बेचना आना चाहिए। सिर्फ शूज़ तो नहीं बेच रहे, स्नीकर्स ही बेच रहे होगे, तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दीज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्नीकर्स। तो आपकी एड वहाँ जाएगी। आपका स्नीकर्स हो गया। अब आ जाते हैं लोफर्स पे। स्लिप ऑन शू लोफर्स पे आ गए। अब मैं समझाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बेच रहा हूँ आईफोन के, अच्छा इसमें आप देखें ब्रेकडाउन हुआ। मुझे बेचने हैं आईफोन की कवर, ठीक है। कौन सा आईफोन की, मुझे स्पेसिफिकली बेचने हैं 17 प्रो मैक्स की, ठीक है। तो अब आ जाओ। मैंने किया iOS। iOS पे किया, इंटरेस्ट पे जाऊंगा। आपको सैमसंग वाला है, वो अगर एप्पल के पेज पे जा रहा है अपने सैमसंग के फ़ोन से, और अगर वो उसका मतलब कि उसको इंटरेस्ट है, तो मेटा समझ जाएगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा तो मेटा उसको ऐड दिखाएगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सैमसंग चलाता है। आपके इंटरेस्ट होने से मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास आईफोन है, राइट। मैं जाऊँगा नीचे, इंटरेस्ट पे नहीं जाऊँगा। ये आया। बिहेवियर गाइस, बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट बहुत वेग हो जाता है। मुझे शूज़ पसंद है, लेकिन मैं 20,000 के शूज़ नहीं ले सकता, मैं आपकी प्रोडक्ट नहीं लूँगा। मुझे तो वही लंडा वाले चाहिए। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मेटा एक काम करो, मेरी ऐड उनको दिखाओ जो फेसबुक एक्सेस कैसे करते हैं, फेसबुक खोलते कैसे हैं एप्पल की डिवाइस पर। एप्पल की डिवाइस में क्या ऑप्शन है, मैकबुक, आईपैड, आईफोन। मैकबुक और आईपैड पे कितने ही लोग खोलते होंगे। मेजोरिटी 95-99% में कह सकता हूँ कि भाई आईफोन पे ही खोलेगी ना। तो मेरी
अल्लाह क्या कहते हैं, मेरी ऐड सैमसंग वाले को नहीं जाएगी। अगर गई तो मेरे पैसे ज़ाया हैं। हर लिंक, हर व्यू के मेटा पैसे लेता है ना। अगर मुझे ऐड किसी की दिख रही है तो उस बंदे को तो पैसे कट रहे हैं ना, क्योंकि उसको मेरी ऐड, मैंने उसकी ऐड देखी। अब मैं वो लूँ नहीं लूँ वो मेटा का मसला नहीं है, मेटा ने दिखाई, मेटा का काम है ऐड दिखाना। अब किसको दिखाना है वो आप यहाँ से बताओगे। तो मैंने बोला यार आईफ़ोन वालों को दिखाना है, बाकी किसी को नहीं दिखाना, ठीक है? अभी ये शू हटा दो, क्योंकि शू काम का नहीं है, ठीक है? अब इसमें और क्या डालूँ? अच्छा, मुझे पता है कि मेरी चीज़ें जो रेगुलरली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई जिसने शॉपिंग कभी ऑनलाइन नहीं की हो। अब जिसने ऑनलाइन नहीं की है वो मेरे पेज जिसके 1000 फॉलोवर्स है उस पे क्यों ही जाएगा, जो आउटफिटर वगैरह से नहीं लेता है, जो अच्छे बड़े से बड़े ब्रांड से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, उसको इतना भी ट्रस्ट नहीं है, वो मेरे से क्यों करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एंगेज शॉपर्स। एंगेज शॉपर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंगेज शॉपर होता क्या है, आप जरा ये भी पढ़ लीजिए। पीपल हु हैव क्लिक्ड कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब लोग जिन्होंने पिछले हफ्ते में कोई एक ऐड पे भी शॉप नाउ, क्योंकि हर ऐड के नीचे शॉप नाउ होता है, लर्न मोर होता है, ये आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन आपके प्रोडक्ट, उन्होंने अगर किसी की लिंक पे क्लिक किया है इसका मतलब कि वो इंगेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो परचेज कर रहे हैं लेकिन कम से कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये हो गया इंगेज शॉपर वाले सब का। अच्छा ये दीज टू पार्ट्स फॉर मी फॉर माई मार्केटिंग इनफ। अभी मैं और चीज़ें नीचे करूंगा लेकिन इसमें अच्छा एक और चीज़, इंगेज शॉपर हटा दिया मैंने, बोला कि मेटा, अच्छा इसमें अभी क्या हुआ था कि मैंने जब यहाँ इंगेज शॉपर किया था तो मेटा बोल रहा था अच्छा या तो मैं एप्पल के यूजर्स को दिखाऊंगा या तो मैं सारे इंगेज शॉपर को दिखाऊंगा, दोनों का मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो iOS वालों को भी दिखा रहा हो और हो सकता है वो कोई सैमसंग वाले को भी दिखा रहा हो जिसने पिछले एक हफ्ते में शॉप नाउ सिलेक्ट किया था। तो ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। मैंने इसको बोला डिफाइन फर्दर में मस्ट एंड मस्ट ऑल्सो मैच। मैंने बोला कि भाई होना तो आईफोन वाला ही चाहिए, और उसमें भी वो वाला होना चाहिए जिसने एक हफ्ते में कहीं ना कहीं शॉप नाउ क्लिक किया, इसका मतलब कि वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखता है, वो थोड़ा आदी है। तो कितनी स्पेसिफिक हो गई, आप ये भी तो देखें ना। आप कितनी हो गई, मेरी ये हो गई 590, मतलब कि 5,90,000 से लेके 6,95,000 तक की टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की, उसमें जो मैंने शहर मेंशन की उसी में से ये मेरी ऑडियंस साइज है। अगर मैं ये डिटेल्ड मार्केट हटा देता हूँ तो ये कितना बढ़ गया, ये हो गया 1 मिलियन पे। जब मैंने इंग्लिश शॉपर सिलेक्ट किया तो फिर वो हो गया था 5-6 लाख पे। तो इतनी स्पेसिफिक डिटेल। अब क्यों, क्योंकि 6 लाख को माइनस करूंगा अगर मैं 12 लाख से, तो वो जो 6 लाख रिमेनिंग। So, I explained to you about the difference basically in the audience. That 600,000 were completely eradicated when I selected engaged shoppers in the also match category part, right? So, now it comes to placements. So, placements is basically about, first of all, it's about devices, which is very important for me, probably not very important for a shoe seller or someone selling clothes. But if you want a very premium market, then you can select only those who use iOS. For me, it's very important because I only sell iPhone covers when I want and Samsung phone covers when I want. So if I am creating an ad for only iPhone covers, I will be using only iOS devices. And in that, I will be more specific. I want to only sell 17 Pro Max covers. So I will select 17 Pro Max. I also have 17 Pros covers, so I will select 17 Pro as well. So now Meta understands that I only want target iPhone users, and even in that department, I only want to target 17 Pro and 17 Pro Max. Now you can see the estimated size. It has shrunk from a million to 150,000 people, according to Meta, or 177,000 in that range, are currently using iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. It's a big market. So you can understand that there is money in Pakistan. And this is not important. When 17 Pro Max was originally launched, within the 1 or 2 weeks, this wasn't here. When I used to search 17, nothing used to show up. Why? Because there weren't enough users for Meta to learn, because there is only a certain amount. अगर लाख है या 2 लाख है, कम से कम लाख है,
तभी मेटा इनको लिस्ट करेगा। अगर कोई मोबाइल है जिसके यूज़र 10 है, वो मोबाइल इधर नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि उसके यूज़र्स ही इतने नहीं है कि मेटा को अंडरस्टैंड हुआ कि अच्छा यार ये डिवाइस को लिस्ट भी करना है। तो इसमें एक और मसला भी है, मैं आपको समझाता हूँ। iOS डिवाइस नहीं, मैं बीच में टारगेट कर रहा था फोल्ड 7 वालों को, ठीक है? फोल्ड 7 वालों को मैं टारगेट कर रहा था। उसमें क्या हुआ था कि मैंने एंड्रॉयड कर दिया, क्योंकि सैमसंग फोल्ड 7 इज एंड्रॉयड। अगर मैंने फोल्ड करा फोल्ड 7 के पाकिस्तान में, जबकि इसको अगस्त में लॉन्च हुआ था, जुलाई के मिड में लॉन्च हुआ था, 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद भी इतने यूजर्स नहीं हैं कि सैमसंग ने इसको ऑफिशियली रजिस्टर किया। इसमें अब मैं क्या करूँगा? इसमें मैं कम से कम ये कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि फोल्ड 7 सबसे लेटेस्ट वर्जन पे ही आया है, और बहुत सारे सैमसंग यूजर्स हैं जो अपने फ़ोन को लेटेस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे अपडेट नहीं करते, क्योंकि फ़ोन का लैग होना शुरू हो जाता है अगर फ़ोन बिल्कुल न्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार मिनिमम मिनिमम जो 16.0 बकलावा के ओ एस वर्जन को यूज़ करते हैं, जिसमें अल्लाह भला करे आपका फोल्ड 7 वाले आते हैं, 25 अल्ट्रा वाले भी होते होंगे, एक नया फ़ोन आया A56 वो वाले भी होते होंगे, लेकिन कम से कम थोड़ा तो स्पेसिफिक हो गया। अब जो S21 अल्ट्रा यूज़ करता है उसका मेरे से क्या ताल्लुक? उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो शायद वो इरेडिकेट हो गया इस रीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 16.0 जो सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसी के यूज़र्स को टारगेट करना है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ जाएँ तो प्लेटफ़ॉर्म्स पे अब डिपेंड करता है। मैं मैसेंजर को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसे ज़ाया होते हैं मैसेंजर से, तो मैंने तो आज तक कोई परचेज़ नहीं की जो मुझे ऐड मैसेंजर में दिखी है, और मेटा इतना स्पेंड भी नहीं करता, बट स्टिल इसको हटा ही दो तो बेहतर है। उसमें अब आप कह सकते हैं कि यार फेसबुक वाली आवाम थोड़ी एवरेज होती है, मैं फेसबुक वाली आवाम को भी नहीं ले रहा। मैं करता हूँ सिर्फ़ इंस्टा पे, वहाँ है प्रीमियम। अच्छा, मेरे बिज़नेस में फेसबुक, इंस्टा दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि मेरे लिए बहुत कंज्यूमर्स वो हैं जो 35 से 45 की रेंज में आते हैं। जो 35 से 45 के जो मर्द हज़रात होते हैं, वो ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। लेडीज़ इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, फेसबुक कम करती हैं। तो अगर मैं सिर्फ लेडीज़ के फ़ोन का वर्च टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं शायद सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाऊँगा, मैं फेसबुक पे नहीं जाऊँगा। ठीक है? लेकिन करंटली मैं दोनों को बेच रहा हूँ, तो मैं दोनों करूँगा। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इसको हमेशा एक्सपेंडेड पे रखा करें। क्यों करना है मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी किसी ने सिखाया था, तो मैं उनकी बात समझता हूँ। आ जाते हैं ऐड पे। ऐड सेट मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं आऊँगा ऐड क्रिएटिव पे। नेम